Diligence often pays, लगन और शिद्दत से हमेशा फायदा ही होता है, but it's rather unfortunate most people resort for shortcuts. लेकिन दुर्भाग्यवश बहुतों बार लोग शॉर्टकट्स के लिए देखते हैं। Bible is full of examples of men and women who walked with the Lord in all diligence. पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे स्त्री पुरुषों का उदाहरण है, उल्लेख है, जो परमेश्वर के साथ में चले हैं पूरे लगन के साथ और शिद्दत के साथ, Their diligence paid them off ultimately. और उस लगन की वजह से और शिद्दत की वजह से उनको बड़ा फायदा हुआ है। This morning the Lord wants us to learn from one such tall figure from the Old Testament. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि पुराने नियम से हम एक ऊंची हस्ती है उनसे हम उनके जीवन से हम कुछ सीखें, Whose diligence is noteworthy. और जिनका लगन देखने लायक है। This man is none other than Elisha, और ये व्यक्ति और कोई नहीं है लेकिन एलीशा है, who received the double portion of Elijah's anointing. जिनको एलिया के अभिषेक का दोगुना भाग मिला। Just to give you the background, brief background to this man's life, और इस व्यक्ति के जीवन का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता I हूँ। want us to know that he came from a very affluent family. हम चाहते हैं कि हम जान ले कि वो बहुत रईस घराने से आते हैं। When Elijah came and threw his mantle on Elisha, जब एलिया आते हैं और अपना चद्दर जो है एलीशा पर फेंकते हैं, Elisha left all and followed Elijah. एलीशा सब कुछ छोड़ छाड़ कर एलिया के पीछे हो लेते He हैं। served God under his mentor Elijah. और एलीशा ने परमेश्वर यहोवा की सेवकाई की या सेवा की एलिया के का दास होते हुए, He did not get distracted. और उन्होंने अपने ध्यान को भटकाया नहीं, He did not get discouraged. वो निराश नहीं हुए, He was not dismayed in his work, वो अपने काम में हताश नहीं हुए, nor in his walk. अपने चलन में भी थके नहीं। When it came for him to receive the double portion of Elisha's anointing, जब समय आया कि एलीशा को एलिया का दुगना भाग अभिषेक का मिल जाए, he had to show the grit and the diligence once again. तो फिर एक बार एलीशा को जो है वो लगन को, वो शिद्दत को बताना था। He went through 4 stages. और वो 4 स्तरों से गुजरे, He went through 4 places, 4 स्थानों से गुजरे, which I believe that the Lord want to talk to us this morning. और इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए परमेश्वर हमसे बात करेंगे। I want us to open our Bibles to 2 Kings chapter 2. हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, दूसरे राजा की किताब 2रा अध्याय। We can see the first stage in this place. हम यहाँ पे पहले स्तर को देखते हैं। I want us to go very slow. हम धीरे से पढ़ेंगे। I want us to learn what the Lord has to teach us very strongly. हम चाहते हैं कि हम सीख ले परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं ठोस रूप से। It says in the NKJV version, and it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। Elijah was about to be taken away. एलिया को स्वर्ग में उठा लेने जा रहे थे यहोवा। Everybody knew that Elijah was going to be taken. सब लोग जानते थे कि एलिया को उठा लेने वाले हैं यहोवा। Elisha knew it very well, एलीशा भी जानते थे, and he held on to his moment. लेकिन एलीशा जो है देख रहे थे। What did he do? उन्होंने क्या किया? He was in Gilgal. वे गिलगाल में थे, And that Gilgal speaks something to you and me. और वो गिलगाल जो है आपसे मुझसे कुछ बोलता है। It is that place where the Israelites were circumcised first time in the promised land. और गिलगाल ऐसी जगह है जहाँ पे इजरायली लोग पहली बार उनका खतना हुआ था वादे के स्थान में। Before they could take over Jericho, यरीहो पर हावी होने से पहले, after Jordan and before Jericho, यरदन के बाद और यरीहो से पहले, this place called Gilgal is where they were circumcised. और गिलगाल में ही उनका खतना हुआ था। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, when they were circumcised, जब उनका खतना हुआ a था, portion of the skin was taken away. उनके चमड़े का एक भाग जो है वो कट गया A था। portion of their flesh was taken away. उनका शरीर का एक भाग हिस्सा जो है वो कट गया था। The Lord is saying that unless that you let go a portion, let go of your flesh and key into the spirit, you will not be able to experience the fullness of the Lord's anointing. परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जब तक आप शरीर को जाने नहीं देते और आत्मा में आते नहीं है, तब तक आप उनके पूरे अभिषेक का वो लाभ उठा नहीं पाएंगे। Number 2,
Further down, we can see in the same place. दूसरी बात हम आगे चलकर देखते Then हैं। Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me unto Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you." So they went down to Bethel. दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले आए। So Elisha chased after Elijah. सो एलीशा एलिया के पीछे हो लिया था He showed his diligence there. और वहां पे उसने अपने लगन को बताया। You and I are required to show our diligence in our walk with the Lord. और जरूरी है कि हम भी अपना लगन और शिद्दत को दर्शाए हमारे चाल में जो हम परमेश्वर के साथ में चले हैं। After cutting off everything that is of the flesh, और जो शरीर का है उसको काटने के बाद, after connecting into the spirit with the Lord, आत्मा में परमेश्वर के साथ में एक होने के बाद, कनेक्ट होने के बाद, we need to receive a vision from the Lord. जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए एक दर्शन को प्राप्त कर ले। It talks about Bethel, and Bethel is where Jacob saw the vision of angels ascending and descending. और यहाँ पे बेथेल के बारे में उल्लेख है और बेथेल में ही याकूब ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग चढ़ते और उतरते देखा था। You and I need the vision. Without the vision, it is quite possible that we may get distracted. और जरूरी है कि परमेश्वर से हमको और आपको दर्शन की जरूरत है। अगर दर्शन नहीं है तो हम भटक सकते हैं। We may drift away aimlessly. हम बिना कोई ध्येय के इधर उधर जा सकते हैं। Number one, we need to connect in the spirit. पहली बात, आत्मा में संपर्क होना जरूरी है। Do away with everything that is the flesh. जो भी शारीरिक है, शरीर का है, उसको काट देना है। Number two, that you need to have a vision to connect to where God wants you to. और जरूरी है कि आपके जीवन में दर्शन हो ताकि आप वहां पे जाएं जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाएं। Number three thing that can be seen little bit further. तीसरी बात हम आगे चलकर देखते हैं। I want us to read verse 4 now. Then Elijah said to him, Elisha, stay here please, for the Lord has sent me on to Jericho. But he said, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. So they came to Jericho. और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। They started from Gilgal, गिलगाल से उन्होंने शुरू की थी। Gilgal to Bethel, गिलगाल से बेथेल, now Bethel to Jericho. अब बेथेल से यरीहो। Again, Elijah said to Elisha, don't follow me. फिर हम देखते हैं कि एलिया ने एलीशा से कहा कि मेरा पीछा मत कर, Let me go myself. मुझे जाने दे अकेले। But Elisha said, no, nothing doing. लेकिन एलीशा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं As हो long सकता। as the Lord lives, जब तक परमेश्वर जीवित है, as long as you live, जब तक तू जिंदा है, I will diligently follow you. मैं तुझको छोड़ने का नहीं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, this is the kind of diligence we need. और देखिए ये लगन और ये शिद्दत की जरूरत हमको And है। with that diligence, he came to Jericho. और उसी शिद्दत के साथ वो यरीहो में And आया। the Jericho represents something very strong और here. यरीहो जो है कुछ ठोस बात को दर्शाता है। If you see Joshua chapter 5, अगर आप यहोशू के 5वें अध्याय में देखते verse हैं, 14, if you check it out, अगर आप 14वें वाक्य में देखते हैं, it is here that Joshua prostrated in front of the angel of the तो Lord. यहीं पे ही यहोशू अपने मुंह बल गिर जाता है यहोवा के स्वर्गदूत के It's सामने। here Joshua prostrated and surrendered himself fully unto the Lord. और यहीं पे यहोशू जो है मुंह बल गिरकर अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, if you want to receive that overflowing measure of the anointing of the Lord, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक की भरपूरिता का आनंद आप उठाए, if you want to experience those promises coming to pass, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वादे आपके जीवन में पूरा होता हुआ आप देखें, you need to surrender yourself unto the तो Lord. बहुत जरूरी है कि आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना, You need to cut off your flesh. शरीर को काट देना है। You have to have a vision.
दर्शन को रखना है अपने and जीवन you के लिए have to surrender yourself unto the और Lord. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से समर्पित कर When देना we है। surrender, that is when we experience the glory of God. जब हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव When we करेंगे। surrender, that's when we experience the goodness and grace of God in every area of our life. जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर की भलाई और उनका अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में फिर हम देख पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Story did not stop there. कहानी यहाँ पे बंद नहीं होती है। Further खत्म नहीं down होती it है। says, now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? And he said to them, yes, I know. Keep silent. Look at the way that he is chasing after Elijah. और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। And verse 6 says, then Elijah said to him, stay here please, for the Lord has sent me on to Jordan. फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं पे ठहरा रहे। My brothers and my sisters, Jordan represents death because Jordan goes and joins Dead Sea. और देखिए यरदन जो है वो मृत्यु को दर्शाता है, क्योंकि यरदन जाकर डेड सी या डेड सी जिसको बोलते हैं उसमें मिल जाता है। I want us to get this very clearly. आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। Baptism is nothing else but death to yourself. देखिए बपतिस्मा और कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने आप के लिए मर जाते हैं। When you want to experience God in His fullness, जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुभव आप पूरी रीति से भरपूरिता से करें, you have to die to your own self. तो जरूरी है कि आप अपने आप के लिए मर जाएं। Firstly, you need to connect in the spirit. You have to let go of the carnality. पहले तो आपको आत्मा में बिल्कुल ही सतर्क हो जाना है और शरीर को काट देना है। Secondly, you have to have a vision and pursue it diligently. दूसरी बात, आपके जीवन के लिए दर्शन होना जरूरी है और वो दर्शन को पूरा करने के लिए आपको बढ़ना है। Number 3, very, very importantly, that you need to surrender and submit yourself to God. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आपको पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। Number 4, very important, that you need to attend your own funeral service. चौथी बात, जरूरी है कि आप अपने खुद के मैयत में सहभागी हो। Every single day you need to see yourself dying. हर दिन दिन प्रतिदिन आपको देखना है कि आप मर जाए अपने आप के लिए। As much as you die to your own और self, जितना आप अपने आप के लिए मर जाते हैं, as much as you die to your flesh and its और desires, जितना आप अपने शरीर के लिए मर जाते हैं, उसकी इच्छा, उसकी लालसाओं के लिए मर जाते you हैं, see the Spirit of God take over you. उतना फिर आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा वो हावी हो जाते हैं, आपका नियंत्रण ले लेते You हैं। see God taking over your life fully. और वो फिर आप देख सकते हो कि परमेश्वर पूरी रीति से आपके जीवन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। You will not miss the blessings of being diligent to this point. और देखिए आप जो है वो आशीषों को खोएंगे नहीं, गवाएंगे नहीं, क्योंकि आपने उस लगन को, उस शिद्दत को दर्शाया। Every promise made unto you shall come to pass. हर एक वादा जो आपके लिए किया गया है वो पूरा होगा In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Why? Because you cut yourself off from your carnality and connected in the spirit. क्यों? क्योंकि आपने शरीर को काट दिया है और आत्मा में जुड़ गए हैं। You have a vision for your life. आपके जीवन के लिए आपका दर्शन है। You surrender yourself to God. आपने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के अधीन में किया है, समर्पित किया है, And you see yourself dying every single day. और आप अपने आप के लिए मर जाते हैं दिन प्रतिदिन। When God sees such a person जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, diligently going through these steps, जब परमेश्वर देखते हैं उस लगन को, उस शिद्दत को जो आप दर्शाते हैं, going through these stages of life, जीवन के इस स्टेजेस या इन स्टेजेस से गुजरते हैं, let me tell you, मैं आपसे कहूं, He will bless you immensely. वो आपको आशीषित करेंगे और खूब आशीषित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want us to go into the day with these thoughts. हम चाहते हैं कि दिन में इन विचारों के साथ आप जाए। I know that the Lord is going to work in you. हम जानते हैं कि परमेश्वर आप में कार्यशील What रहेंगे। we just spoke, the life of Elisha is a challenge to us. और जो हमने अभी आपसे कहा, एलीशा का जीवन हमारे लिए एक चुनौती है। You know, as you pursue
in the spirit, और जैसे आप अपनी आत्मा में आगे बढ़ते हैं, the Holy Spirit will help you to be diligent in your walk with the Lord. पवित्र आत्मा ऐसे होने देंगे कि हमारा चलन परमेश्वर के साथ, हम लगन के साथ में चले और शिद्दत के साथ में चले, In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, You have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।